Hi student, let's begin with exercise number 8.1, question number 6. It's textbook page number 146. Now see what is the question. The question is diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A. What is given? A parallelogram ABCD is given and it is also given that कि AC जो उसका diagonal है वो A को bisect कर रहा है. Show that number 1 it bisect angle C also and number 2 ABCD is a rhombus. ठीक है. Given क्या है? ABCD is a parallelogram. It is given. What else is given? AC bisect angle A. What do you mean by AC bisect angle A? AC A को bisect कर रहा है मतलब कि angle 1 और angle 2 equal है. ओके आई ऑलवेज प्रेफर टू गिव द नंबर क्योंकि उससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अलाउड. सो दैट इज हमें क्या यहाँ पे प्रूफ करना है कि एंगल गिवन में यू कैन राइट कि दैट इज एंगल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड टीपीटी इज इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू 4. वो सी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 को हमें इक्वल बताना है. एंड नंबर 2 is ABCD is a rhombus. ABCD को rhombus बताना है. तो you know how to prove a rhombus. If all four sides are equal, then it will become a rhombus. So let's start the first part. बहुत ही easy है ये sum. What is given कि AC bisect angle A. तो AC अगर A को bisect कर रहा है तो angle 1 और 2 equal हो गया, right? At the same time, angle 2 is equal to angle 3. Why? Alternate interior angle. Similarly, angle 1 is equal to angle 4. So when you will compare कि 1 और 2 equal है, 1 4 के equal है और 2 3 के equal है, तो comparing you will get 3 is equal to 4. Hence AC bisect angle C also. Got it? So let's prove the first part. पहले हम लोगों ने first discuss किया तो first हम लोग prove कर लेते हैं, then we'll proceed for the second question. Now AC bisect angle A. It is given, isn't it? Therefore, I can write angle 1 is equal to angle 2. Correct. Give it number 1 for convenience. Also, we can write कि angle 2 is equal to angle 3. This 2 and 3 will be equal. Reason, alternate interior angles. Correct. This is number 2. Then we can write angle 1 is equal to also angle 4. ये 1 और 4 भी equal है. Same reason. Alternate interior angles. Correct. Now can we compare it 1 2 3. देखो 1 में 1 और 2 को इक्वल बताया और 2 और 3 में 2 3 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है. See this side angle 1 and angle 2 and see this angle 1 and 2 are equal. So comparing you will get, therefore comparing 1 2 and 3 you will get angle 3 is equal to angle 4. That is AC bisect angle C also. Got it? That's all the first part. Let's discuss the second part. ABCD rhombus बताना है आपको. rhombus मतलब चारों साइड उसकी इक्वल बतानी है. ओके अभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 2 जो है वो 3 के इक्वल है और 3 जो है वो 4 के इक्वल है. मतलब कहना है राइट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 4. 1 2 के इक्वल है राइट है ना, फिर 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल बता दिया हमने. तो अगर हम इनको देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 चारों एंगल इक्वल है. इसका एक्चुअली हमको सेकंड पार्ट में यूज़ करना है. अब सेकंड उन्होंने ये बोला है कि आप ये प्रूफ करिए कि ये रोम्बस है मतलब चारों साइड इक्वल बताना है. तो आपने 7 चैप्टर में एक थ्योरम सीखा है. ओके इन अ ट्राइंगल अगर सपोज ये ट्राइंगल है और अगर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इजंट इट? ये आपने पढ़ा है ना. सपोज अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड दोनों इक्वल होगी. सो सी एंगल 1 2 3 4 चारों आपस में इक्वल है तो एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. करेक्ट. सो 4 का अपोजिट साइड ए बी एंड एंगल 2 की अपोजिट साइड बी सी विल बी इक्वल. एंड ये मतलब एडजेसेंट साइड हमने इक्वल बता दी, अपोजिट साइड तो इक्वल है ही बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम एंड यू नो दैट इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट्स ऑल 4 sides are equal and hence it become a rhombus. Isn't it very simple? Let's prove. In first part we proved that
angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 and equal to angle 4. Now angle in triangle ABC, either you take ABC और या फिर आप ADC लेके करो. ADC में भी हम बता सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है. सो AD विल बी इक्वल टू DC. कोई भी एक ट्राइंगल आप ले सकते हैं. सो इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. सो देयरफॉर यू कैन राइट द अपोजिट साइड ऑफ एंगल 2. एंगल 2 ये है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC है. सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 2 is equal to BC and opposite side of angle 4 की opposite side AB is equal, give the reason side opposite to equal angle are equal, correct? And this is known that कि AB is equal to CD also. AB is equal to CD एंड अपोजिट साइड AD इक्वल टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम में AB इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू AD है. सो देयरफॉर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड देयरफॉर ABCD इज अ rhombus. Isn't it very simple? Okay, now let's begin with question number 7. This was question number 6. Now let's start question number 7. Now what is question number 7? Question number 7 is ABCD is a rhombus. Now the rhombus is given. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. ABCD इज अ रॉम्बस दिया है, तो ये हमने ABCD रॉम्बस बना दिया. और उन्होंने दिया है हमें कि डायगोनल जो A है इट बाइसेक्ट एंगल AC जो है इट बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. AC A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4 गिवन हियर. ओके, शो दैट है, सॉरी वो गिवन नहीं है, शो दैट है. वो हमको यहाँ पे एंगल जो एंगल AC जो है वो A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये दोनों प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4 एंड गिवन है कि ABCD इज अ रॉम्बस. ऑल राइट. एंड सेकेंड प्रूफ है कि BD जो है इट बाइसेक्ट एंगल D एंड B एज वेल. ऑल राइट. सो लेट्स बिगिन. सी इट इज अ रॉम्बस, ABCD इज अ रॉम्बस. सो रॉम्बस है तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो इन ट्राइंगल ABC कैन आई राइट AB इक्वल टू BC? ऑफ कोर्स यस. सो बाय द थ्योरम दस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. AB का अपोजिट एंगल 4 और BC का अपोजिट एंगल 2, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट. ऑल्सो एंगल 4 इज इक्वल टू 1. वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो जब हम कंपेयर करेंगे कि जो 4 है वो 2 के इक्वल है, 4 जो है वो 1 के भी इक्वल है, तो कैन वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2? यस. इससे प्रूफ हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो जब हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल 4 जो है वो 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो इससे कंपेयर करके प्रूफ हो जाएगा कि 3 और 4 भी इक्वल है, दैट इज AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. एंड सिमिलरली अगर हम BD को ज्वाइन कर ले और यहाँ पे 5 6 7 8 दे दे, तो वी कैन प्रूव कि जो BD है इट बाइसेक्ट B एज वेल एज D. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग. इन ट्राइंगल प्रूफ. इन ट्राइंगल ABC AB is equal to BC. Why? Sides of rhombus are equal. So the reason is sides of rhombus. Okay. Now therefore angle 4 is equal to angle 2. AB का अपोजिट एंगल 4 और BC का अपोजिट एंगल 2 है. रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके. नाउ गिव a number. Let's number it 1. सो एंगल 4 और 2 हमने इक्वल बता दिया. अब हम 4 को 1 के इक्वल बताएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्सो एंगल 4 is equal to angle 1 number 2 alternate interior angle. See, can I compare 1 and 2? Yes.
Comparing 1 and 2, what you will get? 4 is equal to 2, 4 is equal to 1, that is 1 is equal to 2. एंगल 1 is equal to एंगल 2 हो गया. एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया, मीन्स AC bisect एंगल A. नाउ वी नीड टू प्रूव AC bisect एंगल C ऑल्सो, मतलब 3 और 4 को भी इक्वल बताना है. तो कुछ नहीं, बस एक लाइन आपको और करना है कि एंगल 2 is equal to एंगल 3, alternate इंटीरियर एंगल. करेक्ट, गिव इट नंबर 3 बिकॉज 2 ऑलरेडी ऊपर हमने दिया है. एंड इफ आई कंपेयर 1 and 3, 1 में हमने 4 को 2 के इक्वल बताया, 3 में हमने 2 को 3 के इक्वल बताया. सी दिस 2 and 2 कंपेयरिंग, 3 विल बी इक्वल टू 4, राइट. सो कंपेयरिंग 1 and 3, comparing 1 and 3, you will get angle 3 is equal to angle 4, that is AC bisect angle C also. Understood? Finish. अब ये जो BD bisect B and D है, similarly you can write कि similarly we can prove that angle D BD bisect angle D and B. No need to prove. And if you want to prove, see this, I'll show you here. Suppose this is 1 2 3 4, तो यहाँ नंबर दे दीजिए आप 5 6 7 8. And then in triangle ABD, take this triangle, AD is equal to AB, sides of the rhombus, then 7 is equal to 5 हो जाएगा, the angle opposite to equal sides are equal, and then 7 will be equal to 6, alternate interior angle, so you can write 5 is equal to 6. And similarly जब आप 8 को 5 से बताएंगे alternate interior angle, तो you will get 7 is equal to 8. Understood? That's all about question number 7. Now let's start question number 8. What is question number 8? Your question number 8 is ABCD is rectangle. What is given? ABCD is a rectangle and AC bisect angle A as well as angle C. It is given कि AC जो है वो A को भी bisect कर रहा है और C को भी bisect कर रहा है. Please refer your textbook. Question number 8. ABCD is a rectangle. Given ABCD is a rectangle. AC bisect कर रहा है A को भी और C को भी, मतलब एंगल 1 is equal to 2 and एंगल 3 is equal to 4. It is given. Okay. Now show that number 1 ABCD is a square. आपको दो चीज़ें उसमें बतानी है. एक तो ABCD को आपको स्क्वायर बताना है और दूसरा आपको बताना है डायगोनल जो BD है, दिस BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. अंडरस्टूड? सो सबसे पहले तो हम स्क्वायर प्रूफ करते हैं. स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रेक्टेंगल गिवन है, मतलब उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल है. अगर हम एडजेसेंट साइड इक्वल बता देते हैं तो फिर चारों साइड इक्वल हो जाएगी और वो स्क्वायर आपका प्रूफ हो जाएगा. और रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री है ही, वो हमें प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमको इसकी चारों साइड इक्वल बतानी है. गॉट इट? नाउ हाउ? So first of all, can I write angle 1 is equal to angle 4? Yes, by alternate interior angle. Can I also write 1 is equal to 2? Yes, it is given. So if 1 is equal to 4 and 1 is equal to 2, so can I write कि 2 is equal to 4 हो गया? Yes. अगर 2 और 4 इक्वल है तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 is equal to एंगल 4. So the side opposite to equal angles are equal. तो we can write कि side BC is equal to AB. हो गई adjacent side equal. और AB और DC तो उन्होंने इक्वल है ही क्योंकि वो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है. BC इक्वल टू AD है तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई, इसीलिए उसकी चारों साइड इक्वल है एंड हेंस इट इज अ स्क्वायर. अंडरस्टूड? लेट्स प्रूव इट इज अ स्क्वायर. देन विल डिस्कस अबाउट BD bisect B and D also. So angle 1, first of all I'll write angle 1 is equal to angle 4, alternate interior angle. Then angle 1 is equal to angle 2. It is given, isn't it? Then comparing these two, I will get from 1 and 2, I will get angle 2 is equal to 4. Now, in triangle ABC, angle 2 is equal to angle 4. So, the opposite side of angle 2, see this angle 2 ये है तो इसकी opposite side BC and angle 4 की opposite side AB equal है. Sides opposite to equal angles are equal. Correct? Now, AB is equal to CD. Opposite sides of the rectangles are equal and BC is equal to also AD. Opposite sides of rectangle are equal. Opposite sides of rectangle. So, opposite side भी equal है
एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, देयरफॉर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD and therefore ABCD is a square. Got it? ABCD स्क्वायर हो गया. अब बचा सेकेंड पार्ट इसका कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. ये आप लोगों ने प्रीवियस इसमें भी किया है, लेकिन यहाँ वो भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या प्रूफ किया, ABCD को हमने स्क्वायर प्रूफ किया. तो एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के इट बाइसेक्ट इट्स एंगल. एक प्रॉपर्टी है, तो हम डायरेक्टली उससे भी इसे कर सकते हैं. उतना लेंदी मतलब उसको डायगोनल ज्वाइन करके फिर नंबर्स देके उतना भी करने की जरूरत नहीं है. हमने स्क्वायर प्रूफ किया है ना, तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल, bisect its angles, and so diagonal BD bisect angle B as well as angle D, hence proved.